Good morning, class 9th. Today we are going to do questions of exercise 8.2. Okay. In previous lecture I taught you about midpoint theorem. Today we will utilize that theorem to solve the problems. Okay. You can see the first question says ABCD is quadrilateral in which PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Okay. AC is a diagonal. Show that there are three parts we need to show. SR is parallel to AC, SR is equal to half of AC, and the second part PQ is equal to SR, and the third part PQRS is a parallelogram. So this is very easy. आइए करते हैं solution. Okay. We can write here the given things. P, Q, R and S are midpoints. Okay. To prove, फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं to prove SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Okay. प्रूफ करना क्या है आपको, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी एस एंड आर द midpoints of sides DA and DC respectively. Okay, now we can write here. So SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, and reason दिखा देंगे by MPT midpoint theorem. Okay, देखिए कितना आसान है, केवल आपको रीज़न देना है और आपका ये सॉल्व हो जाएगा. ओके, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. ओके, नाउ वी विल कंसिडर पी क्यू. लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल बी ए सी. ओके, P and Q are the midpoints of sides BA and BC. Okay, BA and BC. So we can write here PQ is parallel to PQ is parallel to AC as well as PQ is equal to half of AC. Okay, by MPT say equation 2. So from 1 and 2 आप देख सकते हैं SR भी इक्वल है हाफ ऑफ AC के, PQ भी इक्वल है हाफ ऑफ AC के, तो SR PQ के बराबर है. फ्रॉम 1 and 2 SR इज इक्वल टू PQ. ओके, प्रूव्ड. तो ये भी आपने जो है कि प्रूव कर लिया कि SR जो है PQ के बराबर है. थर्ड पार्ट आपको दिखाना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम. ओके, थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव PQRS इज पैरेललोग्राम. इसे आप इक्वेशन 3 कह सकते हैं. अगेन वी कैन राइट हियर फ्रॉम 1 and 2 क्या निकलेगा, SR is parallel to AC, PQ is also parallel to AC. So we can write SR is parallel to what, PQ. Okay, from 1 and 2 SR is parallel to PQ and from 3 we may write SR इज़ इक्वल टू PQ. तो आपको मालूम है किसी क्वाड्रिलेटरल में
अगर वन पेयर ऑफ साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS is parallelogram, hence proved. Okay, I hope you understood. Now this is question number 2. ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. Show that PQRS is a rectangle. Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रोम्बस को बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक रोम्बस कंसिडर कर लिया, नाम दे देते हैं ABCD एंड मिड पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं PQR एंड S। AC को ज्वाइन करा देते हैं, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं। ओके, और साथ ही साथ हम लोग BD को भी ज्वाइन करा देते हैं। हम लोगों को मालूम है कि डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, तो ये इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखेंगे। नाउ लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन आपको मालूम ही है, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle। ओके, रेक्टेंगल के लिए शर्त है कि अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल और ईच इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग कंसिडर कर लेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC P and Q are mid points, okay, points of sides AB and BC, okay, AB and BC या BA and BC. So you can write here PQ is equal to or PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by MPT से इक्वेशन 1। ओके, अगेन ऊपर वाला ट्रायंगल चुन लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC S and R are the midpoints of sides DA and DC, यहाँ पर भी मैं BA कर देता हूँ। ओके, DA and DC, तब यहाँ क्या आप लिखेंगे, नाउ SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, so by MPT midpoint theorem say equation 2। okay, from 1 and 2 you may write PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR, so quadrilateral PQRS is parallelogram। तो हम क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों ने पैरेललोग्राम तक पहुंचा दिया है। अब पैरेललोग्राम से हमें कहाँ ले जाना है, पैरेललोग्राम से हम लोगों को ले जाना है इसे रेक्टेंगल तक। तो यहाँ पे कुछ कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ओके, जैसे इसे मान लेते हैं KLM। ओके, KLM। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगेन या नेक्स्ट पार्ट में SR, नाउ SR is parallel to what, AC। SR is parallel to AC और SK is parallel to ML। ओके, क्योंकि ये एक ही लाइन है इसीलिए SK जो है कि किसके पैरेलल हो गया, ML के।
सिमिलरली अगर BD को कंसिडर करेंगे तो ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब SP और PS इज पैरेलल टू BD। ओके, PS इज पैरेलल टू BD और MS इज पैरेलल टू LK या SM इज पैरेलल टू KL। ओके, और SM इज पैरेलल टू KL। यहाँ आप दिखा सकते हैं। ओके, ये भी साइड जो है कि पैरेलल होगा। क्योंकि हम लोगों ने एक पोर्शन को प्रूव किया था तो सिमिलरली हम दूसरे साइड को भी पैरेलल दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बोला भी है कि PQRS क्या है भाई, PQRS जो है कि आपका पैरेललोग्राम भी है। चलिए, तब इसके वजह से यहाँ पे आप देखेंगे SMLK क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रिलेटरल SMLK इज़ ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो SLMK में पैरेललोग्राम है तो एंगल L इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, क्योंकि एंगल L दिया हुआ है 90 डिग्री है, एंगल L बराबर 90। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल L इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 degree. Okay, so angle L is equal to 90 degree, but angle S is equal to angle L. प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल S इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल S 90 डिग्री है तो बाकी का भी जो है कि 90 हम लोग दिखा सकते हैं। सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस क्वाड्रिलेटरल, हैंस अभी तो ऊपर हम लोगों ने इसे पैरेललोग्राम दिखा दिया। हैंस पैरेललोग्राम PQRS इज रेक्टेंगल। ओके, प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सारा खेल प्रॉपर्टी का है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।